Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 4 of algebraic topology. In the previous lecture, we studied some non-orientable surfaces, and now we will discuss some other non-orientable surfaces, the classification theorem for the non-orientable surfaces, and some two-dimensional objects which are not compact. I am Dr. Mubin Munir. This is course of algebraic topology with course code Math 5127. In the first part, we discuss some orientable surfaces, and in the second part, we discuss non-orientable surfaces. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम टू डायमेंशनल कनेक्टेड स्पेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली अलजेब्रिक टोपोलॉजी जो है वो रिवॉल्व करती है सम मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और टू डायमेंशन में ऐसा इम्पॉर्टेंट जो टोपोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है वो है स्फीयर। सो टू डायमेंशनल कनेक्टेड स्पेसिस डिस्कस की हुई जो हम डिस्कस करेंगे उनमें से किसी एक टोपोलॉजिकल स्पेस के होम्योमॉर्फिक होगी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है प्लेन। प्लेन इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। Picture is given. Everybody knows about the plane. It's simple. Some properties of the plane are: it is non-compact. Plane is non-compact. This is a plane, and when we say it's a plane, all direction goes to infinity, so it's a non-compact. Ideologically, when we say that a certain object is compact, it means there exists a big box of arbitrary size. An object can be packed inside that box. अगर हमारे पास एक ऐसे बड़े साइज का बॉक्स हो जिसमें उस ऑब्जेक्ट को हम रख सके तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्पैक्ट है। प्लेन को चूंकि उस इन्फिनिटी होती है, वो किसी साइड में भी उसको किसी साइज में भी हो उसको हम किसी बड़े बॉक्स में पैक नहीं कर सकते, लिहाजा प्लेन जो है वो एक नॉन कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है। आल्सो इट इज ओरिएंटेबल। व्हाई इट इज ओरिएंटेबल? क्योंकि एक इसकी ऊपर वाली साइड है और एक इसकी नीचे वाली साइड है, और आप मूव करते हुए कभी भी ऊपर वाली साइड आपका जो नॉर्मल है, मूविंग नॉर्मल, ऊपर वाली साइड से नीचे वाले नहीं जा सकता और नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। सो दो अलग अलग साइड्स हैं इसकी। इट इज ओरिएंटेबल, इट इज कनेक्टेड, ये एक ही पीस में है। और प्लेन की एक सिंपल पैरामीटराइजेशन म्यू यू lambda t can be written as let's say a mu plus b t, where a and b are non-parallel vectors, or okay, a and b are non-parallel vectors or non-parallel vectors. Next object, historically the most famous object
in algebraic topology and in fact in geometry is sphere, also because its shape topologically is homeomorphic to earth, to the surface of the earth. Sphere can be embedded in the Euclidean space R3 as 3 is equals to all order triplets x, y, z belongs to R3 such that x square plus y square plus z square equals to 1 is the equation of the sphere. The other very familiar presentation is the stereographic projection of the sphere, and it's a map from R2 to S2 given by this formula bxy is equals to 2x b of xy is equals to 2x over x square plus y square plus 1, 2y over x square plus y square plus 1, 1 manfi x square manfi y square over 1 plus x square plus y square. As you see in the picture, this graph, this stereographic projection is given. In the picture with the yellow sphere, its projection, here is the equatorial plane, projection from point P1 is taken and point 1 goes to the outer circle, the bigger circle in the equatorial plane, and and in the figure 2 this projection is more clear, because if you can see, अगर आप देखें गौर से तो जो लाइनें वो बता रही हैं कि स्फीयर का पॉइंट किस प्लेन के किस लाइन पर किस पॉइंट पर प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वो जो कि इक्वेटर के पैरेलल सर्कल्स हैं, इक्वेटर के पैरेलल जो सर्कल्स हैं वो सर्कल्स बन रहे हैं, और जो दूसरे सर्कल्स हैं वो लाइंस बन रही हैं, गौर से अगर आप देखें तो अंडर दिस प्रोजेक्शन। और ये पॉइंट बता रहे हैं कि सर्कल के स्फीयर के पॉइंट और प्लेन स्फीयर का पॉइंट किस पॉइंट पे मैप हो रहा है प्लेन के। दिस इज कॉल्ड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. इट कैन बी जनरलाइज्ड इन एनी डायमेंशन फ्रॉम स्फीयर टू space R n. The other idea of a sphere, it can also be considered as a Riemann sphere. What a Riemann sphere is, a Riemann sphere जो है वो है कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप पॉइंट एट इन्फिनिटी को ऐड कर दें, तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है ये टोपोलॉजिकली S2 बन जाता है। यानी ये ऐसा ही है जैसा कि आपने एक चादर को फैलाया, इन्फिनिट चादर को, और फिर आपने चादर के तमाम जो पॉइंट्स एट इन्फिनिटी हैं, जो सारे किनारे हैं, सारे कॉर्नर्स हैं, सारी लाइनें हैं आखिर वाली, उनको आपने एक पॉइंट पर इकट्ठा करके, जिस तरह आप गटरी बनाते हैं, तो वो गटरी पे जो तमाम पॉइंट्स जो बाहर होते हैं, चादर के आखिरी पॉइंट्स होते हैं, वो गटरी के एक पॉइंट पर जुड़ जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो गटरी एक टोपोलॉजिकली स्फीयर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जिस तरह के फर्स्ट पिक्चर में आपको क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि नीचे एक प्लेन है, हमने प्लेन को प्रेजेंट किया है एक सर्कुलर शेप में, और तमाम पॉइंट जो आउटर सर्कल पे हैं उनको हमने जोड़ दिया है स्फीयर के एक पॉइंट पे, और इस तरह से ये हमारे पास एक स्फीयर की शक्ल इख्तियार कर गया। ये प्लेन प्लस पॉइंट एट इन्फिनिटी, इट्स कॉल्ड रीमन स्फीयर। दूसरी पिक्चर भी रीमन स्फीयर की ही है, ये उसका ज्योमेट्रिक मॉडल है, आप कंसीडर कर लें। बाकी सारे पॉइंट जो है, नीचे वाला पॉइंट जो है वो आपका वही पॉइंट है जो आपका ओरिजिन था, फिर आपका आयोटा और -1 पॉइंट, ये चारों आपके इक्वेटर पे आ गए हैं, और वो तमाम पॉइंट जो बहुत दूर थे, बहुत करीब जो है वो ज़ीरो के पास आ गए पॉइंट ओरिजिन के, और जो बहुत दूर हैं वो तमाम पॉइंट इन्फिनिटी पे मैप हो गए। ये दोनों ही रीमान स्फीयर्स हैं।
रीमन स्फीयर जो है वो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये आइडिया बर्नार्ड रीमन, फेमस जर्मन मैथमेटिशियन, तो आइडिया ये था कि तमाम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस फ्रॉम सी टू सी, जब रैशनल फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है फ्रॉम सी टू सी, तो उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पे वो इन्फिनिट देता है आंसर। तो अगर अगर हम चाहते हैं कि ये फंक्शन पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पर डिफाइन हो जाएं, तो इसके लिए हम उन्हें मैप करेंगे फ्रॉम सी टू सी, नॉट फ्रॉम सी टू सी, फ्रॉम सी टू रीमन स्फीयर एस टू, वेयर द आइडिया क्या है कि वो पॉइंट जहाँ वो फंक्शन डिफाइन नहीं थे, सिंगुलर पॉइंट्स थे, उनको मैप कर दिया जाए पॉइंट एट इन्फिनिटी ऑफ एस टू। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है अब पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पर डिफाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फंक्शन देखें एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, ये फंक्शन है फ्रॉम सी टू एस टू, और अगर आप गौर से देखें तो इसमें ओरिजिन के ऊपर ये फंक्शन 1/z जो है ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लें कि ज़ीरो के ऊपर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी दे जब जेड ज़ीरो है, और एल्सवेयर बाकी तमाम पॉइंट्स पे जो इसके करीब करीब हैं एफ ऑफ जेड हो 1/z दे दे, इन दिस वे हम इस मैप को यानी एक्सटेंड किया हमने। ये पहले मैप था फ्रॉम सी टू सी, लेकिन बाद में जब हमने इसको एक्सटेंड किया इस सेंस में, तो ये अब पूरी की पूरी सी पर डिफाइन है। मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए कि एफ ऑफ जेड हमारे पास मैप था 1/z फ्रॉम सी माइनस जीरो टू सी माइनस जीरो, यहाँ पर डिफाइन है। लेकिन अगर हम एफ ऑफ जेड को पूरी सी पर डिफाइन करना चाहें, ये मैप आपके सामने पिक्चर बता रही है कि ये मैप क्या कर रहा है। ये मैप जो लार्जर सर्कल हैं उन्हें स्मॉलर सर्कल में कन्वर्ट करता है, जो स्मॉलर सर्कल हैं उनको लार्जर सर्कल में कन्वर्ट करता है, और ये जो पार्ट है उसका इमेज अंदर दिखाया गया है, स्मॉल सर्कल के अंदर दिखाया गया। जो बाहर वाला पार्ट है, बाहर रेक्टेंगल जो नज़र आ रही है, उसका इमेज जो इंटीरियर सर्कल, सबसे छोटे सर्कल के अंदर इमेज बताया गया इसका। और ये ओरिएंटेशन, सो ये आपका मैप है। अगर z को हम आर ई योटा थीटा लें तो एफ ऑफ आर ई योटा थीटा बन जाता है 1/r ई योटा थीटा। सो आपका जो रिजल्ट की मैग्नीट्यूड आ रही है, वो जो लेंथ आ रही है, वो इनपुट के रेसिप्रोकल आ रही है, और ओरिएंटेशन रिवर्स हो रही है। मीन्स अगर हम ओके f map smaller circle to large and conversely, and we can try to extend this map from, and this map is this f of z equals to infinity. When z equal to 0 we get infinity, and z not equal to 0 we get f of 1/z, and here this map becomes from C to Riemann sphere S to C union infinity, and this map is now an extension of our previous map, and this works well. सो हमने यहाँ तक अभी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के अंदर प्लेन और सफ़ियर के डिफरेंट फॉर्म्स को देखा है। आगे हम इसके कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ये हमारा इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है, and in this part we will classify all non-orientable connected compact surfaces. हम इसमें कुछ पार्ट लास्ट लेक्चर्स का भी रिमाइंड करवाएंगे जिसमें हमने क्लासिफाई किया था ऑल ओरिएंटेबल कनेक्टेड कॉम्पैक्ट सरफेसेस को। नॉन ओरिएंटेबल सरफेसेस की प्रॉपर्टी क्या है? दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मॉडल इन 3 डायमेंशनल स्पेस सो इजीली। एक्चुअली इन ऑब्जेक्ट्स को हम 3 डायमेंशनल स्पेस में मॉडल नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वॉल्व करते हैं सेल्फ इंटरसेक्शन को। The simplest object of this kind is the Mobius band, introduced by German mathematician Mobius in 19th century. And in previous lectures we have discussed what is a Mobius band. We have also discussed the orientability and arrived at the result that Mobius band is non-orientable. In the last lectures we have also discussed that handle, which is a cylinder, is one technical object that can be attached to a sphere to obtain all connected compact surfaces. Here we discussed that Mobius band along with a cross cap is also an important object
and it can be attached to spheres to obtain arbitrary non-orientable connected surfaces. So इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि मोबियस बैंड को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. हाउ वी कैन ऑब्टेन अ मोबियस बैंड. हम मोबियस बैंड को ऑब्टेन कर सकते हैं एज अ कोशेंट स्पेस बाय एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ आई क्रॉस आई ओवर रिलेशन. आई क्रॉस आई क्या है? फर्ज कीजिए हमारे पास ये प्लेन है. आई फर्स्ट आई जो है वो ये इंटरवल है. सेकंड आई जो है वो हमारे पास वो ये इंटरवल है. और आई क्रॉस आई हमारे पास एक्चुअली ये एक स्क्वायर बन जाएगा. ये सारा कुछ ये यूनिट स्क्वायर बन जाएगा. ये बनेगा आई क्रॉस आई. अब हमने क्या करना है, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है इस पे. ये इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे डिफाइन होगा कि ये पॉइंट जो हैं ये आपने आइडेंटिफाई कर देने हैं ऑपोजिट साइड में इस पॉइंट से. यानी ये पॉइंट जोड़ेंगे आप यहां से, ये पॉइंट जोड़ेंगे यहां से, ये पॉइंट जोड़ेंगे यहां पे. यानी इसको इससे कनेक्ट करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है, इसको ऐसे रहने देना है. तो देन यू विल गेट अ मोबियस स्ट्रिप. सो मोबियस स्ट्रिप जो है इट कैन बी ऑब्टेन एज अ कोशेंट स्पेस ऑफ अ यूनिट स्क्वायर. और ये जो दो दूसरे बाकी किनारे हैं, ये वाला किनारा, ये किनारा और ये किनारा, इनको आपने ओपन ही रखना है, इनको आपने कनेक्ट नहीं करना. आप ये एग्जाम्पल या एक्सपेरिमेंट कीजिए. एक पेज लीजिए, स्ट्रिप काटिए और स्ट्रिप के किनारों को आप ऑपोजिट साइड में आके दो किनारों को ग्लू कर दीजिए. तो आपके पास मोबियस बैंड बन जाएगा, मोबियस स्ट्रिप हासिल होगी. नेक्स्ट हम इसकी विजुअलाइजेशन भी देखते हैं. आप गौर से देखिएगा इसकी विजुअलाइजेशन को. ये हमारे पास एक स्ट्रिप थी, ये स्ट्रिप है. हमने क्या किया, हमने ये स्ट्रिप है ये सारी. इसके बाद इस पिक्चर को देखिए, हमने इनको ऑपोजिट साइड से ग्लू करना है. ऑपोजिट साइड का ग्लू का मतलब क्या है, वी विल ब्रिंग दीज एजेस विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्लोज टू ईच अदर. ये क्लोज कर दिया हमने एक दूसरे के. लेकिन जब हमने ग्लू करना है तो इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, इस पॉइंट को इस कॉर्नर के साथ जोड़ना है, और इसको इसके साथ जोड़ना है, और इसको इसके साथ जोड़ना है. तो इस केस में हमारे पास एक ट्विस्ट आएगी, ये ट्विस्ट बनेगा ट्विस्टेड, और ये हमारे पास बनेगी मोबियस बैंड हासिल होगा. इसमें एक ट्विस्ट होगा. The other most important object in algebraic topology is the cross cap. Cross cap क्या है? In lecture 3 we have discussed that a handle is in fact a cylinder which is a basic object in construction of connected compact orientable surfaces. For non-orientable surfaces, the other basic object is the cross cap, viewed as in the next slide. But ये क्रॉस कैप क्या है? क्रॉस कैप में एक्चुअली सेल्फ इंटरसेक्शन आएगा. सेल्फ इंटरसेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कोई कर्व है, अगर आप इस कर्व को इस तरह से करें, ऐसे इस तरह से मॉडिफाई करें, तो इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि कर्व अपने ही आपको इंटरसेक्ट कर रहा है
यानी यहां पर सेल्फ इंटरसेक्शन है, सेल्फ इंटरसेक्शन। सो सेल्फ इंटरसेक्शन जो है वो इसको एम्बेडिंग नहीं होने देगा। एम्बेडिंग होता है इंजेक्टिव मैप। इंजेक्टिव मैप का मतलब क्या है कि आपके कोई से भी दो पॉइंट जब आप इसको स्पेस में या प्लेन में कहीं रख रहे हैं, किसी सरफेस को या किसी कर्व को, तो फिर वो आपस में सेल्फ इंटरसेक्ट ना करें। एम्बेडिंग हमने करनी है और देखना है कि क्या ये सेल्फ इंटरसेक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम जरा गौर से व्यू करते हैं कि क्रॉस कैप है क्या। ये आपके सामने क्रॉस कैप आपको दिखाई गई है। क्रॉस कैप क्या है? ये पहले एक स्ट्रिप थी, सिंपल यूनिट स्क्वायर था, और यूनिट स्क्वायर में हमने क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है ये वाला, कि इस एज को हमने ग्लू करना है इस एज से इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये पॉइंट यहां मैप होंगे, ये पॉइंट यहां जाएंगे और ये पॉइंट यहां जाएंगे, और इस एंड को हमने, इन दो एंड्स को भी हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में मैप करना है। ये मतलब फर्स्ट केस में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस स्ट्रिप के किनारों को जरा बाहर निकाला, किनारों को हमने बाहर निकाल दिया। ये दो, इनको पर्पल को आपस में ग्लू करना है, और हमने दो रेड ये हैं इनको आपस में ग्लू करना है। इनको हमने इनको खींच के आपस में इसके करीब ला रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए, ठीक हो गया। अब जब हमने इनको ग्लू करना है तो ग्लू करते वक्त हमें सेल्फ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। पर्पल को पर्पल के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लू करना है। चलें, ये पहला एक तो अलाउ हो जाएगा, एक अलाउ कर देंगे आप, एक को ग्लू कर देंगे, लेकिन जब आप दूसरे को ग्लू करने लगेंगे तो पिछले पार्ट को आपको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, और ये आपके पास ये चीज हासिल होगी, एंड दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस कैप। ये क्रॉस कैप हासिल होगी इस केस में हमारे पास। क्रॉस कैप की विजुअलाइजेशन और इसके मोबियस स्ट्रिप से रिलेशन में, ये भी एक नॉन ओरिएंटेबल सरफेस है, इसका मोबियस स्ट्रिप से जो रिलेशन है वो हम अब व्यू करें वो क्या है इस मूवी के अंदर, जरा गौर से देखिएगा। हम इसकी क्रॉस कैप और उसको व्यू करेंगे। ये आपके सामने एक मोबियस बैंड है, ये नॉन ओरिएंटेबल सरफेस है, मोबियस बैंड। आपने सिर्फ मोबियस बैंड को अलग किया, अब आपने दूसरे कॉर्नर जो थे येलो वाले उनको हमने ग्लू करना है। ये क्रॉस कैप हम बनाने लगे हैं। क्योंकि ब्लू कलर ऑपोजिट ओरिएंटेशन में है, अब ये बिल्कुल सीधी ओरिएंटेशन में आएगा। सो ओरिएंटेशन के लिए आपको बहुत एहतियात करनी होगी। ये एक ही ओरिएंटेशन में आ गया, ब्लू को ब्लू से ज्वाइन कर दें, ग्रीन को ग्रीन से ज्वाइन कर दीजिए आप, और बीच में देखें आपके पास सेल्फ इंटरसेक्शन नजर आ रहा है। सो दिस इज अ क्रॉस कैप। ये क्रॉस कैप आपकी होगी, आपस में इसके अंदर सेल्फ इंटरसेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये सेल्फ इंटरसेक्शन। ये एनिमेशन जोस लीज की बनी हुई है, और हम मोस्टली अलजेब्रिक टोपोलॉजी में जोस लीज की एनिमेशन को यूज कर रहे हैं।
इसके लिए आप जॉस लीज का वेब पेज भी देख सकते हैं, उसमें उसने अलजेब्रिक टोपोलॉजी में काफी एनिमेशंस बना के पहले से ही रखी हुई है। हम यहीं से आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोबियस स्ट्रिप, क्रॉस कैप्स, नॉन ओरिएंटेबल सर्फेसिस और उन नॉन ओरिएंटेबल सर्फेसिस की क्लासिफिकेशन। मीनवाइल हम ये भी अब रिमाइंड करवाएंगे कि आप हैंडल स्फीयर के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं और मोबियस स्ट्रिप के साथ कैसे ये अटैच कर सकते हैं, स्फीयर के साथ मोबियस स्ट्रिप्स कैसे अटैच कर सकते हैं। थैंक यू।